Hello students, welcome to my YouTube channel Grover Sahitya Classes. So for today's topic, this topic is for secondary, senior secondary and the undergraduate students and even those who are preparing for the competitive exam. So let's start today's topic. As you see on the board, my topic is models, modal verbs, or I must say modal auxiliaries. One thing students, I must make you clear about that. There are two pronunciations in the market. Some must say modals or models. The two pronunciations are, one is American and one is Britishers. But the main native speaker of this language, they are the Britishers. And about America, you all know that it is discovered. So both the pronunciations are right, American as well as Britishers. So दो तरह की pronunciations हैं. कुछ लोग आपको शायद ऐसा बोलते हुए मिलेंगे modals, schedule, schedule को. So both are equally good. ऐसा नहीं है. No doubt in the English movies even and English channels also you must see or you must watch or hear or listen the American English. आपको ज़्यादातर नेट्स पे सोशल मीडिया पे और इंग्लिश मूवीज़ में आपको अमेरिकन इंग्लिश मिलेगी. बट I feel that we must follow Britishers because Britishers are the real owners. So वो मेन इस भाषा के हकदार हैं and we must follow them. So आपको दोनों ही तरह की pronunciation मिलेंगी and one must important information that is in my lectures I would be bilingual because language must not be the barrier. जो language है, भाषा है, that must not be the barrier in learning. सीखने में वो रुकावट नहीं होनी चाहिए. And I feel that even the students of our area, they might have some difficulty in grasping this language. So I would be bilingual to clear the concepts as well as in English as well as in Hindi. So our topic for today is modal verbs, or I must say modal auxiliaries. If you look out the word auxiliary in the dictionary, अगर आप इसका meaning देखें तो इसका मतलब होता है to help something or somebody. So these verbs, modal verbs, are also called helping verbs which help the main verbs. Modal verbs भी जो हैं वो help करती हैं, main verbs की help करती हैं sentence में. There are some expressions, no doubt there are more helping verbs like is, am, are, was, were, has, have, had, लेकिन कुछ ऐसे और language में expressions हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मॉडल वर्ब्स की ज़रूरत पड़ी. देयर आर एक्सप्रेशंस लाइक परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑफर, इनवाइट, जस्ट लाइक दैट. सो इन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक अलग तरह की मॉडल वर्ब्स की ज़रूरत पड़ी. एंड दोज वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज. देयर आर मेन लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, need not, dare not, has to, have to, had to. These are the basic ones which you will find in any kind of a grammar books. So these are the modal auxiliaries, modal verbs. ये लगभग modal auxiliaries हैं, modal verbs हैं जो कि आपको लगभग हर एक ग्रामर बुक्स में मिल जाएंगी. But again I am saying that my sole aim is to make you perfect in concept based learning.
आपको टर्म्स आनी चाहिए, आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, आपको डिफाइन करना आना चाहिए. नॉर्मली स्टूडेंट्स आर लैकिंग इन दिस. हम ट्रांसलेशन कर देते हैं. सपोज आई मस्ट से दैट एवन व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ फ़ोन. सो उसको डिफाइन करना नहीं आएगा शायद बच्चों को. इफ़ आई से दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ बुक, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स कहें कि किताब नहीं. सो बुक इज़ अ थिंग विच गिव्स अस नॉलेज. सो नॉर्मली हमें टर्म्स का ज्ञान नहीं है, हमें टर्म्स की नॉलेज नहीं है. सो वो नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. सो आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट मच वन. सो लेट्स स्टार्ट टुडे फॉर दिस दैट कि ये वर्ब्स किस किस तरह से काम करती हैं और कहाँ कहाँ आती हैं. सो देयर आर सम कैटेगरीज. हम उन कैटेगरीज के अंडर आज दो मॉडल वर्ब्स करेंगे. वन इज कैन एंड सेकंड इज कुड. आज यही करेंगे दो. सो द कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी इज एबिलिटी. एबिलिटी, कैपेबिलिटी means to say योग्यता. Can and could, both modal auxiliaries are used for this category. Ability यानी कि योग्यता. कोई इंसान, कोई भी चीज किसी काम को करने के योग्य है तो हम can और could से एक्सप्रेस करते हैं. How? Now what it means that can means to, अगेन इसका आपको मीनिंग आना चाहिए. कैन मीन्स टू बी एबल टू एंड कुड ऑल्सो मीन्स टू द सेम, बी एबल टू. और एक बात और याद रखें आप, वन मोर थिंग, कैन और बी एबल टू कभी इकट्ठा यूज नहीं होगा. नो, इफ यू यूज इट देन इट इज रॉन्ग. वाई रॉन्ग? बिकॉज द मीनिंग ऑफ कैन इज बी एबल टू. कैन का मतलब ही बी एबल टू है. तो आप इसको एक साथ लाइक कैन बी एबल टू, ये आप यूज नहीं कर सकते. इट इज रॉन्ग. कुड, क्योंकि कैन का मतलब ही बी एबल टू है. कैन मीन्स टू से इज एम आर एबल टू. बी जो कि रूट वर्ड होता है, इसको हम इज एम आर प्रेजेंट में और वाज वर पास्ट में यूज करते हैं. तो बी को हटाकर कैन का मतलब है इज एम आर एबल टू. कैन का मतलब ये है. तो मीनिंग्स को समझें, कंसेप्ट को समझें, फिर यूज करना बहुत इजी है. सो फर्स्ट कैटेगरी है एबिलिटी की, जिसके अंडर हम कैन का यूज कर रहे हैं. सो प्लीज बी अटेंटिव. लाइक कैन, आई टोल्ड यू, कैन का मतलब है बी एबल टू, यानी कि कोई भी इंसान जिसके साथ या कोई भी चीज जिसके साथ हम कैन लगा रहे हैं वो उस काम को करने के योग्य है, या उसमें वो एबिलिटी है, या उसमें वो कैपेबिलिटी है. लाइक इफ आई से दैट शी कैन मेक द प्रोजेक्ट. इफ आई वॉन्ट टू ट्रांसलेट इनटू सिंपल इंग्लिश, अगर मैं इसी को ट्रांसलेट करना चाहूं तो इसका मतलब बनेगा she is able to make the project. Yes, she is able to make the project. वो इस काम को करने के योग्य है. यानी कि एक और बात, here we are discussing about only ability, not about the action. हम ये नहीं बता रहे हैं कि उसने वो प्रोजेक्ट बनाया या नहीं बनाया. हम ये बता रहे हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए योग्य है. सो वी आर हेयर सिंपली टेलिंग अबाउट द एबिलिटी. बार बार इस बात को समझें, एबिलिटी के बारे में ये बताता है, ना कि एक्शन के बारे में. ये लड़की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शी, वो इस प्रोजेक्ट को बनाने में योग्य है, सक्षम है. उसमें वो क्वालिटी है कि वो इस काम को पूरा कर सकती है. इसका मीनिंग अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, शी इज एबल टू मेक द प्रोजेक्ट. सो कैन का मतलब एबिलिटी के साथ है, और कैन शो करता है प्रेजेंट की एबिलिटी की.
कैन इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंट एबिलिटी, प्रेजेंट की एबिलिटी को कैन जो है वो शो करता है। सो प्लीज बी अटेंटिव हियर, कैन जो है वो प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करता है। तो प्रेजेंट में कोई इंसान किसी काम के करने के योग्य है, उसकी एबिलिटी के बारे में अगर हमने मॉडल वर्ब्स को लगाना है तो हम कैन को लगाएंगे। सपोज वन मोर एग्जांपल लाइक he can jump over the table. So this is he can jump, यानी उसमें जंप करने की योग्यता है। Even this bag can contain 10 books. This bag can contain 10 books. यानी कि इस बैग में 10 किताबें रखने की योग्यता है। सो हम किसी ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ ये तो थे कैन का मतलब एबिलिटी के अंदर, और कुड का मतलब होता है पास्ट एबिलिटी, यानी कि कुड कैन का पास्ट है और एबिलिटी के लिए यूज होता है। एक बात और, एक ही मॉडल वर्ब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होगी और उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। सो कुड इज यूज्ड फॉर द पास्ट एबिलिटी, लाइक कुड मीन्स टू से दैट वाज वर एबल टू, यानी कि कोई इंसान किसी काम को करने के योग्य था। इन द पास्ट इफ आई से दैट शी कुड drive a car when she was 10 years old. She could play the piano when she was in class 5th. So this is what could means to say past की ability, was were able to, इसकी जगह मैं लगा सकता हूं was were able to, यानी कि she was able to drive a car, she was able to play the piano. So this is the first category ability under which we have discussed, हमने डिस्कस किया कि can और could मॉडल वर्ब्स हैं और can और could का थोड़ा सा मीनिंग बदलता है, यानी कि सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में। अगर किसी की एबिलिटी हमने प्रेजेंट में बतानी है तो हम कैन लगाते हैं, अगर पास्ट में बतानी है तो कुड लगाते हैं। एंड वन मोर थिंग इन द एंड, सिंपली कैन और कुड और या किसी भी मॉडल वर्ब के साथ ऑलवेज बी वन आएगी, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक मैंने यहां लगाया ड्राइव, मैंने लगाया प्ले, उसमें मैंने लगाया था कंटेन और मैंने लगाया था जंप। So always any model we use with any model V1 first form of the verb को यूज करेंगे। always and always verb और मॉडल के बीच में और कोई अक्षर नहीं होना चाहिए, और हम हर एक कैटेगरी में उसके मीनिंग को थोड़ा चेंज के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैन और कुड एक और कैटेगरी में किस तरीके से यूज होते हैं। सो फॉर टुडेज टॉपिक इज दैट कैन एंड कुड अंडर दिस एबिलिटी कैटेगरी। सो आई होप दैट यू वुड डेफिनेटली मेक द रिजल्ट्स, यू वुड डेफिनेटली गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट्स। आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसको प्रमोट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फाइनली यस, प्रेस द बेल आइकन, you will get the notifications. I hope that you would promote us, you would support us. Thank you and have a nice day.